Dear students, here we have lesson number 8 of Reader. Chapter name is The Mathematician. So, children, you must be knowing the meaning of mathematician. The mathematician is a person who is very good in calculations. Rest we will try to find out in the chapter. Now, before we start section 1, we will read the first two lines, which is the little bit introduction. Zoe's father tells her a story about creatures from outer space. So in this chapter, we are going to read about a girl, Zoe, whose father tell her a story, and it was the story about the creatures from outer space. That means from another world. A maze attacking Earth. So even they attack the our Earth planet. So that means the invaders or the creatures uh, are from the some other planet. What happens to human beings? So what happens to human beings means human beings, those who are living on the earth, what happens with them? Is the story real? We have to find out whether the story is real or not. See section 1. They were in the garden. Now Zoe said Xenia Hawkins to her 9-year-old daughter, quite fluttering around, and Papa, will you tell me a story? So they were in the garden means Zoe and her parents, they all were in the garden. Now Zoe said Xenia Hawkins to her 9-year-old daughter. So that daughter is of 9 years old. So her mother told her, and she was just talking to her father also, that Papa, will you tell a story? She is requesting her father to tell a story. Zoe settled down in the hammock. Zoe जो है वो अपने hammock में बैठ गई है. A true story, Papa, and she is requesting her father to tell her a true story. It all happened exactly like I am going to. So the story started like this only, that I am going to tell you a story, said Drake Hawkins. So father's name is Drake Hawkins. Pinching Zoe's rosy cheek. So Zoe, he just touched Zoe's rosy cheeks. Cheeks होते हैं गाल, गालों को touch किया. Now and he started the story. Now 2011 years ago in 1985, figuring by the earthly calendar of that time, a tribe of beings from the dog star Sirius invaded Earth. So Drake Hawkins, his father, told him a story that around 2011 years ago, 2011 साल पहले in 1985, एक ट्राइब, एक प्रजाति है फ्रॉम द डॉग स्टार सिरस, जो कि सिरस की तरफ से आई है. इन्वेडेड अर्थ, इन्वेडेड होता है आना, अर्थ के ऊपर आई. एंड व्हाट डिड दीज बीइंग्स लुक लाइक, फादर? एंड देन नाउ जो just put question to her father, as all the children you do. छोटे बच्चे सभी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, और उसने फटाफट से जो ने पूछा, पापा वो कैसे लगते थे? लाइक ह्यूमंस इन मैनी मैनी रिस्पेक्ट, कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही थे. पापा ने जवाब दिया. दे ईच हैड 2 arms, 2 legs एंड ऑल द अदर ऑर्गन्स दैट ह्यूमंस हैव. तो उनकी भी दो बाजू, दो टांगे, और बाकी की ऑर्गेन्स भी ह्यूमन बींग्स की तरह थे. वॉजंट देयर एनी डिफरेंस एट ऑल बिटवीन द स्टार बींग्स एंड द ह्यूमंस, पापा? फिर से बेटी ने, जो ने फिर से क्वेश्चन किया पापा से कि पापा, क्या उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं था? देयर वॉज, था. पापा ने बोला, द न्यू कमर्स ईच ऑल हैड अ पेयर ऑफ विंग्स, कि जो भी वो बाहर से नए जो न्यू कमर्स थे, उनके बाकी की ह्यूमन बींग्स की तरह तो बॉडी है ही है, लेकिन उसके अलावा उनके 2 विंग्स भी थे. कवर्ड विद ग्रीन फेदर्स, जो कि ग्रीन फेदर से बने थे, हरे पंख से बने थे. ग्रोइंग फ्रॉम देयर शोल्जर्स, जो उनके कंधों से बड़े हुए थे, यानी कि जो उनके विंग्स हैं, जो पंख थे, वो उनके कंधों से जुड़े हुए थे. एंड लॉन्ग पर्पल टेल्स, और उनकी लंबी लंबी पर्पल कलर की टेल थी. यू मस्ट बी seeing in your photograph. See, the green feathers, wings are there, and purple long tail is there. So
Next, how many of these? Now Zoe again have a one question. How many of these beings were there, father? तो कितने बींग्स थे ये जो हमारी अर्थ के ऊपर आए? एग्जैक्टली 3,041,000 मेल अडल्ट एंड 3 फीमेल एडल्ट. अब पापा ने जवाब दिया कि एग्जैक्टली 3,041,000 मेल अडल्ट थे, मेल बड़े थे, मीन्स मेल और फीमेल का वो बता रहे हैं. तो कहते इतने तो बड़े मेल में थे, एंड 3 फीमेल एडल्ट, और 3 फीमेल एडल्ट थी. So these creatures first appeared on the island of Sardinia. कहते ये सबसे पहले ही जितने भी थे क्रिएचर्स सबसे पहले अर्थ के ऊपर सर्डिनिया के आइलैंड पर आए. इन 5 weeks टाइम दे वर द मास्टर्स ऑफ द एंटायर ग्लोब. और कहते 5 weeks के अंदर अंदर 5 weeks यानी कि 4 week का आपका 1 month होता है, यानी 1 month 1 week के अंदर अंदर पूरे ग्लोब मतलब पूरे अर्थ के ऊपर वो फैल गए. Didn't the earthling fight back, पापा? earthling here means जो अर्थ के ऊपर रहने वाले creatures. तो तब उसने पूछा कि पापा किया. The humans fought the invaders using bombs, super atom bombs and कहते जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने उनका मुकाबला किया किसके साथ? बुलेट्स के साथ, बंदूक के साथ, सुपर एटम बॉम्ब्स के साथ और गैस के साथ. What were those things like, Papa? Oh, they passed out of existence long ago. Ammunition they were called. कहते वो सारी की सारी चीज़ें थी उस समय में एग्जिस्ट करती थी और उनको नाम दिया जाता था एम्यूनेशन. एम्यूनेशन यानी कि हथियार, उनके वो हथियार थे. द ह्यूमन्स फॉट ईच अदर विद सच थिंग्स. ह्यूमन बींग्स आपस में बोलता उन्हीं के साथ लड़ते थे. एंड नॉट विद आइडियाज़, और वो आइडियाज़ के साथ में नहीं लड़ते थे लाइक वी डू नाउ, फादर. यानी कि वो हमारी तरह आइडियाज़ में नहीं लड़ते थे, विचारों में नहीं लड़ते थे, बल्कि वो आपस में हथियारों से लड़ते थे. नो विद गन्स जस्ट लाइक आई टोल्ड यू. तो उन्होंने पापा ने एक्सप्लेन किया नहीं वो गन से लड़ते थे. बट द इन्वेडर्स वर टू द इम्यूनिटी, उसके लिए वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे. व्हाट डज दिस इम्यून्स मीन? अब उन्होंने पूछा ये इम्यून क्या होता है? सेफ अगेंस्ट हार्म, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना किसी भी नुकसान से. यानी उनकी जो बॉडी थी वो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी कि कोई उनको हार्म नहीं कर सकता था. देन दी ओ ह्यूमन्स ट्राइड जर्म्स एंड बैक्टीरिया अगेंस्ट द स्टारविंग्स. फिर ह्यूमन बींग्स के दिमाग में आया कि चलो हम जर्म्स और बैक्टीरिया से इनको हराने की कोशिश करते हैं. वट वर दोज थिंग्स? अब क्योंकि उसको ये भी नहीं पता था कि ये जर्म्स बैक्टीरिया क्या होता है, हिज फादर टोल्ड हिम टाइनी टाइनी bugs that the humans tried to inject into the bodies of the invaders to make them sick and die. छोटे छोटे बोलते वो bugs थे, कीड़े थे, ताकि वो ह्यूमन जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि उन जो बाहर आए हुए थे इन्वेडर्स इनके अंदर इनके बॉडी में डालें जिससे कि वो बीमार हों और मर जाएं. बट द बग्स हैड नो इफेक्ट एट ऑल ऑन द स्टारविंग्स. लेकिन जो बग्स थे उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ. नाउ व्हाट हैपेंस in the next section we will read and will find out.